Hello everyone, my name is Priyanka. Welcome to our channel IS Cafe. As we had already announced that we are starting the complete UPSC course on our channel along with the current affairs daily video which we provide you. So if I talk about the UPSC course, we are starting with GS paper 1 geography. I hope everyone is aware about the UPSC syllabus, which is divided into GS paper 1, GS paper 2, 3, and 4. If we talk about GS paper 1, it includes geography, history, and certain topics of social issues or social justice, which you can study in a merged manner of GS paper 1 and 2. So, if I talk about the geography, which is our today's topic of discussion, students often complain that we are not able to understand the NCRT books of geography. And all the toppers say that geography NCRT is enough for UPSC preparation. So, what is the dilemma then? See, there is a beautiful art to read the geography. There is a chronology to read about the geography. That is, firstly, you should try to cover the climatology part because it includes all the concepts which will be applied in the later part of your geography. Plus, most of the questions come from this part. Then you will study about geomorphology, oceanography, then Indian geography, and then human and economic resources. Why Indian geography so late? Because if you know the complete concepts about these climatology, geomorphology, you will be able to apply this with respect to Indian geography as well. Okay. Now, if I talk about the climatology or any of these topics, the source which we are covering is, as everyone say, NCRT books of class 11 and 12. That's it. For specific chapters of the world climate, we will prefer the GC Leong book as well. All right. So, how this session would be? Firstly, I will try to make you clear about all the basic concepts. Till then, I request you don't read any book. Once your basic concepts are clear, then we will start with the chapters of the NCRT. After watching the video, you can go home and you are on home only because in home only because it's an online class. So once you see the video, you can substitute that with the chapters of NCRT, and I'll let you know what chapters you can relate with the video. So this is how the complete session will be going on. All right. So that's it for the introduction. Now we should start our discussion. So before starting our discussion, please do subscribe our channel IS Cafe and as much as possible like and share so that we could help you mentor you. All right. So climatology. To read about the climatology, firstly we will talk about the basic concepts. Why? Reason? The prelims questions are based on conceptual part, and then you can apply these conceptual part in the other topics as well. Like if you talk about the atmosphere, which is your chapter in the NCRT, the atmospheric circulation, air mass, the cyclones, recent cyclone, the Biparjoy in the West Bengal. Now in newspapers you read about that due to the cyclone, El Nino concept, the La Nino concept, right? Indian oscillation dipole. But ये सब कब समझ आएगा जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे. Clear? Then world climate, Indian climate, and cropping pattern and India. So this is how we are going to do it. Now let's start with the basics.
In the lecture 1, that means today, we will be talking about these points specifically. Now, basics पे आते हैं. Please open your notebooks and pen, and you can make the notes as well. Okay, so this is about the basic concept. First and most important, you will, you know, talk about weather and climate in your complete geography books or the session or discussion. So, what is the difference between the weather and climate? See, what we say that wow, what a weather! It's raining outside. What a बकवास weather! गर्मी सी लग रही है. तो वेदर को लेके हम क्या बोल सकते हैं कि इट्स लाइक अ टेम्पररी कंडीशन ऑफ अ रीजन. गेटिंग माई पॉइंट? तो वेदर क्या है यहाँ पे? इट्स लाइक अ टेम्पररी कंडीशन ऑफ अ रीजन. ठीक है. And when I talk about the climate, it is the average weather condition of a region. For example, जून, जुलाई, अगस्त, इंडिया के अंदर हमेशा क्या देखा जाता है? मॉनसून देखा जाता है. तो ये हमने पिछले 20-30 सालों में ऑब्जर्व किया है कि इन महीनों के अंदर इंडिया में हमेशा क्या आता है? मॉनसून आता है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या आता है? विंटर्स आते हैं. तो ये क्या है? आपके पास क्लाइमेट है, विच इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन. ठीक है. एवरेज वेदर कंडीशन क्या हो जाएगा? आपके पास क्लाइमेट हो जाएगा. अब ये एवरेज कितना? वी कंसिडर इट एज अराउंड 30 ईयर्स. ठीक है. ये पहली चीज क्लियर हो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट. Coming to the next concept of the basics, we will be talking about heating and cooling. Okay, so what we are saying over here is about heating and the cooling. Okay, wait, let me just correct it. Atmosphere के अंदर जितने भी phenomena हो रहे हैं, that is mostly due to either heating or cooling. I repeat, most of the phenomenon in the atmosphere occurs either due to heating or the cooling. Suppose I have a matter which is of a solid condition, and if I heat this solid matter, it will turn into liquid. Alright? So if I heat this solid material, it will turn into liquid, and if I further heat this substance, it will turn into gas. And opposite is also possible, that if this gas gets cooled down, it will convert into liquid, and if it further cools down, it will convert into the solid. ठीक है. दैट मीन्स किसी भी सॉलिड को अगर आप हीट करते हो, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड आपकी गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को कूल डाउन करोगे तो लिक्विड में, और इस तरह से. कैसा है ये समझेंगे हम. ये आपके पास कोई भी सॉलिड मटेरियल है, इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा पास में होंगे. द पार्टिकल्स of a solid substance are placed very close to each other, and when you heat this substance, this solid substance, okay, when you heat this solid substance, these particles move away from each other, and the substance get changed into the liquid, and when you heat it further, it changes into the gases. That means the particles of this substance move more away from each other. तो यहाँ पे हमने मेजरली बात करी है हीटिंग की, है ना. ये जो हीटिंग है उसकी वजह से उसका जो चेंज हुआ है मैटर, सॉलिड से फॉर्म, मैटर का जो फॉर्म है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. तो हीटिंग कैसे हो रही है उसको हम समझते हैं. ठीक है. पूरा आपका क्लाइमेटोलॉजी जो है इसी हीटिंग पे बेस्ड है. प्लीज डू नॉट मिस दिस कंसेप्ट, दैट इज हीटिंग. तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीटिंग. कंडक्शन है, convection है और radiation, right? So you're having 3 modes of heating. One is your conduction, then you are having what? Convection, and the third one is your what? The radiation. Conduction है, convection है और radiation.
these three mode of heating are, they are having a different properties. They are having different ways to heat a substance. For example, if we talk about the conduction, पहला केस ले लेते हैं हम कंडक्शन का. कंडक्शन में क्या होता है, when you place two objects of unequal temperature in close to each other, in touches, when they touches to each other, this is a body and this is a B body. मान लो कि ये जो है वो वार्मर है और ये जो है आपके पास कूलर है. नाउ प्लीज डोंट अंडरस्टैंड कि अगर ये वार्मर है तो ये आइस है. जब भी हम वार्म और कूलर की बात करते हैं इन द ज्योग्राफी, वी टॉक अबाउट कंपैरेटिवली कि अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो कूलर मतलब उसका टेम्परेचर 25 हो सकता है, 22 हो सकता है, तो कंपैरेटिवली ठंडा है ना. तो मेरे पास यहाँ पे क्या दो ऑब्जेक्ट्स है. ऑब्जेक्ट ए जो है वार्मर है, ऑब्जेक्ट बी जो है आपके पास कूलर है कंपैरेटिवली. तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि वार्मर से कूलर की तरफ, आप कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ आपको एनर्जी ट्रांसफर दिखेगा. इसको बोलते हैं कंडक्शन. ठीक है. जब आप एक किचन में बीकर को गर्म करते हो, ठीक है, कुछ खाना बना रहे होते हो और फिर एक चम्मच लेते हो उसको हिलाने के लिए, तो दिस बीकर इज कंप्लीटली वार्मर एज कंपेयर टू दिस स्पून which is comparatively what cooler here. But after some time you see कि ये चम्मच भी गर्म हो जाता है. That means ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है फ्रॉम वार्मर टू कूलर, ये बहुत ही स्लो और अ स्टेडी ट्रांसफर ऑफ हीट यहाँ पे हुई है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज योर कंडक्शन. क्लियर है. एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं. आपने चलो उसको हम लास्ट में एक साथ करते हैं. दूसरा में यहाँ पे बात करेंगे हम कन्वेक्शन के बारे में. ठीक है. तो सेकेंड मोड ऑफ हीटिंग जो होगी यहाँ पे वो हो गया आपके पास कन्वेक्शन के बारे में. बट व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन क्या होता है? यहाँ पे देखो, एक मैं बना रही हूं बीकर जिसमें मेरे पास क्या है, लिक्विड है. पहले हमने बात करी कंडक्शन में कि दो सॉलिड ऑब्जेक्ट एक साथ है. But when we talk about the convection, here we talk about the transfer of heat through the movement of liquid and gases. That means here we are talking about liquid or the gases. That is transfer of heat of liquid or gases. अगर मैंने इसको heat किया तो सबसे पहले यहाँ तक का जो substance होगा वो तो normally ऐसा conduction क्या होगा, heat on होगा. Conduction अभी हम समझ के आए हैं, है ना. देखो इसको मैं बड़े बीकर में आपको समझाना चाहूंगा, प्लीज फोकस करो उसके ऊपर. यहाँ पे मेरे पास क्या है, पार्टिकल्स है. अब ये पहले यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू क्या हो गया, हीट ऑन हुआ. जब भी पार्टिकल्स, ध्यान से सुनना, जब भी पार्टिकल्स हीट होते हैं तो वो हल्के होते हैं, है ना. जब अपन चाय या पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि भाप ऊपर की तरफ उठती है, जो वेपर है वो ऊपर की तरफ उठ रही है. तो यानी ये पार्टिकल्स जब कंडक्शन की वजह से हीट ऑन होंगे तो वो हल्के होंगे. और जब पार्टिकल्स हल्के होते हैं तो वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ उठेगा, है ना. तो जब ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठा तो ये जगह खाली हो गई. ये जगह जब खाली हो गई तो आसपास की पार्टिकल्स इसको फिल करने की कोशिश करेंगे. तो ये जो आप साइकिल देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है और ये यहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है और ये इधर जा रहा है. तो दिस इज नोन एज योर कन्वेक्शन साइकिल. और ये काम आएगी आप जब अपन साइक्लोन वगैरह पढ़ोगे तब. तो ये बात हो गई सॉलिड की, ये बात हो गई लिक्विड की, गैसेस की. बट सन तो बहुत दूर है, अर्थ बहुत नीचे है, तो सन की हीटिंग कैसे हो रही है? एक ऑब्वियस क्वेश्चन है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ हीटिंग. आपने बोला मैडम की कंडक्शन इज गिवन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर कम्स टुगेदर, दे गेट हीटेड अप. In convection, madam, you told about the liquid or the gases. But what about the sun heating, which is the ultimate source of heat for the earth? In case of the sun heating, the third mode of heating comes, that is your radiation. रेडिएशन को समझने से पहले आप विंटर्स को इमेजिन कीजिए. विंटर्स या फिर कोई भी लद्दाख का ट्रिप इमेजिन कीजिए, और एनी ट्रिप जिसमें आपने बॉन फायर कर रखा होगा, है ना. आप बॉन फायर करते हो, आप जलाते हो,
तो ऐसे तो है नहीं कि उसको हाथ में पकड़ के आप अपने आप को बोलते हो कि मुझे अब ठंड ना लगे। नो, यू सिट समवेयर फार फ्रॉम इट, एंड धीरे धीरे क्या होता है, ये बॉनफायर होता है, कुछ टाइम के बाद में यू फील कि आपको वार्म फील हो रही है, या हल्की सी अब सर्दी ना लग के गर्मी लग रही है, आप हाथ सेकते हो ना ऐसे, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है, जब कोई सोर्स ऑफ हीटिंग होती है, right? When there is a source of heat, then they transfer via wave. ठीक है, तो जब ये वेव्स हम तक पहुंचती है या फिर लैंड सरफेस तक पहुंचती है, हमको हीटिंग फील होती है। अब ये जो वेव्स है उसको मैं इस तरह से बना के आपको दिखाना चाहती हूँ। वेव्स कुछ इस तरह से होती है, अगर ये सोर्स ऑफ हीट बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी का हुआ, ध्यान से सुनोगे, अगर ये सोर्स ऑफ हीट बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी का होगा तो वो तेजी से आएगा, फास्ट स्पीड से आएगा, और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी। कंपैरेटिवली अगर आप कूलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हो तो उसकी जो हीटिंग या फिर आप एनर्जी बोल सकते हो वो लो होगी, दैट इज लो एनर्जी। तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी यहाँ पे आपके पास ज्यादा। फिर से समझते हैं, रेडिएशन हमको समझ में आ गया, बट नाउ आई एम कंपेयरिंग दिस रेडिएशन विद रिस्पेक्ट टू अ वार्मर ऑब्जेक्ट एंड अ कूलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक मेरे पास क्या है, वार्मर ऑब्जेक्ट है, और एक मेरे पास क्या, कूलर ऑब्जेक्ट है। वार्मर ऑब्जेक्ट यानी कि हम बात कर लेते हैं सन के बारे में, तो ये भाई इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा, हीटिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ही ज्यादा लो होगी, और या तो हो जाएगा वाइस वर्सा, दैट इसकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ही कम होगी, और इसका जो वेवलेंथ होगा वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, लॉन्ग वेवलेंथ। और ये हो जाएगा आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ। समझ लीजिए, आगे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो एनसीईआरटी की जो बातें लिखी हुई है ना वो आसानी से आपको समझ में आए। बट दिस ऑब्जेक्ट इज वार्मर एंड दिस ऑब्जेक्ट इज कूलर, ये कौन बता रहा है आपको? वाई वी मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ टेम्परेचर। By measuring the temperature, we say that this object is warmer and this object is your cooler. Clear? So if I talk about the temperature, if there is any solid object, we can measure its temperature via thermometer. ठीक है, फिर एक कंसेप्ट आता है मिनिमम टेम्परेचर का और मैक्सिमम टेम्परेचर का। सुबह के जो 5 बजे होते हैं, दैट इज 5 AM, उस वक्त जनरली बोला जाता है कि वो है मिनिमम टेम्परेचर, और दोपहर के जो 2 बजते हैं वो होता है आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर। कारण समझते हैं, ड्यू टू द सन हीटिंग, ये आपके पास सन है, और इनकी ये जो सन की वजह से जो अर्थ है वो हीट अप हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द अर्थ, ये क्या करती है, हीट अप होती है डे टाइम में बाय रेडिएशन, अभी हमने समझा। बट अब नाइट टाइम में क्या होगा कि जब सन है ही नहीं, सोर्स ऑफ हीटिंग है ही नहीं, तो अर्थ अपने अंदर की जो हीट है उसको बाहर निकालना स्टार्ट करती है, दैट इज ट्रांसमिट करती है, बाहर की तरफ निकालती है। तो ऐसे जब वो करती है तो सुबह के 5 बजे के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम होता है, और रेडिएशन की वजह से जब हीटिंग होती है तो दोपहर का जो 2 बजे का टाइम होता है, दैट इज योर द मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है उसको हम यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे बेसिक कंसेप्ट के बारे में, दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ एयर। खैर हम ये इसको पढ़ चुके हैं, दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ एयर। आई एम रिपीटिंग दिस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, कि जब आप किसी भी एयर ऑब्जेक्ट को, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने की वजह से क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठते हैं। तो यहाँ पे एक एमटीआर कर लीजिए, देखो मेरे पूरे सेशन में एमटीआर का मतलब होगा मुझे तो रटना है, मतलब ये कुछ मैथ की फॉर्मूला की तरह आप समझ सकते हो कि यूपीएससी की जर्नी में ये कुछ चीज होंगे जो आपको एमटीआर कर दिए हैं। तो यहाँ पे एमटीआर क्या होगा कि हॉट एयर कॉलम। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द हॉट एयर कॉलम,
ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसको आप हीट ऑन कर रहे हो और इसको आप गर्म कर रहे हो, यानी कि एक हॉट एयर कॉलम है, तो वहां पे आपके पास जो एयर होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ उठेगी, तो एयर विल ऑलवेज राइज अप। कंपैरेटिवली अगर ये कूलर ऑब्जेक्ट होगा या कूलर कॉलम होगा तो एयर जो होगी नीचे की तरफ बैठेगी, सिंक करेगी, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू हीट ऑब्जेक्ट, उसके जो पार्टिकल्स है वो लाइटर होंगे तो वो ऊपर की तरफ उठेंगे, यानी कोई भी हॉटर ऑब्जेक्ट है, हॉटर एयर कॉलम है, वहां पे एयर ऊपर की तरफ उठेगी। साइक्लोन फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये काम आएगा, ध्यान से सुनो। और जो कूलर ऑब्जेक्ट है, कूलर एयर कॉलम है, उसमें एयर जो है नीचे की तरफ सिंक करती है। क्लियर है? ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए, ये है आपके पास स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक जो हीट है वो क्या होता है, देखो, एक आपने ले लिया यूनिट मास एरिया कि एक पर्टिकुलर मेरे पास एरिया है, इस एरिया का टेम्परेचर मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस है। अब इस 30 डिग्री सेल्सियस से इस एरिया का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, यानी इस एरिया का टेम्परेचर 31 करने के लिए जितनी हीट मुझे चाहिए, जितनी हीट लगेगी, वो मेरी स्पेसिफिक हीट होगी। समझो मैं क्या कह रही हूँ, किसी भी एरिया का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की मुझे जरूरत है वो स्पेसिफिक हीट होगी। क्लियर है? दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of an per unit area mass by 1 degree Celsius is known as your specific heat. अब लैंड और उसके बारे में बात करते हैं, वाटर बॉडी के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लैंड, और ये हो जाएगा मेरे पास वाटर। आप यहाँ पे इमेजिन करिए जैसलमेर का डेजर्ट, एग्जाम्पल के तौर पे। डेजर्ट में आपने नोटिस किया होगा कि दिन में वो मिट्टी जो होती है बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, और रात में जाओगे तो एकदम ठंड लगेगी आपको, वहां पे कूलर होता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट यानी लैंड सरफेस है, लैंड सरफेस है तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा लो होती है, यानी उसको बहुत ही कम अमाउंट की हीट में भी वो जो टेम्परेचर है वो जल्दी बढ़ा देती है। समझो, उसकी स्पेसिफिक हीट कम है, यानी कि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है तो बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट से वो अपना जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देती है, और उतनी जल्दी वो निकाल भी देगी हीट को। तो दैट इज द रीजन कि आपको यहाँ पे क्या दिखता है, दिन में गर्मी और रात में ठंडी। वाटर यानी कि जो बैंगलोर एरिया हो गया, मुंबई एरिया हो गया, तो पानी के आसपास वाले एरिया होते हैं, वहां पे आपको एक मॉडरेट टेम्परेचर दिखता है, क्योंकि उसको हीट ऑन होने की वजह से पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो ज्यादा होता है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, डोंट टेक इट ग्रांटेड, कि पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है ज्यादा होता है, यानी इसको गर्म होने में ज्यादा टाइम लग रहा है और ठंडा होने में कम टाइम लग रहा है, तो इसको बोलते हैं मॉडरेट, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर दिखता है। और यहाँ से आपके पास कंसेप्ट आता है डिफरेंशियल heating pattern of land and water, differential heating of land and water। कोई भी आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, वहां पे लिख देते हैं कि ड्यू टू डिफरेंशियल हीट ऑफ लैंड एंड वाटर दिस हैपेंड, साइक्लोन में ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब जो बेसिक्स है हमारा, उसका एक और लेक्चर आएगा जिसको हम करेंगे, और उसके बाद हम तो एनसीईआरटी के प्रॉपर जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारी होने वाला है एटमॉस्फेयर, करेक्ट। तो आई विश दिस टॉपिक इज एब्सोल्युटली क्लियर। कोई भी फीडबैक है, इट इज ऑलवेज वेलकम। If you want any change in the way of teaching, you can write in the comment section. I hope you just revise it properly, and we'll meet you soon in the next lecture. Okay. Thank you so much. Please do subscribe our channel, like and share.